Okay, good morning everyone. Welcome you all. And in this video, we are going to discuss about the mountain and the forest soil. Till now, we have completed all the type of the soil that we have found in the India. Okay, and their characteristics and their distribution we already discussed. This is the last soil which we are going to discuss. That is mountain and soil and the forest soil. Okay, and its distribution. Okay, so first of all, this soil is found in the mountain area. Mountain area of the India, that is northern mountain region or southern mountain region. Few mountains are there in the peninsular India like Western Ghat, Eastern Ghat, Vindhyachal range, Satpura range, etc. So it is found in the mountain area and the forest region. Okay, it is found in the mountain area and the forest region of the country. Its structure and the texture, okay, its structure and the texture, structure and texture से मतलब ये हो गया कि its combination, okay, minerals and the size of the grains varies, okay, so there is a variation according to the environment. Clear? So there is a variation in the structure and the texture of mountain and the forest soil according to the environment or climatic condition of that particular region. Okay, like in the valley side, in the mountain area, suppose that this is a mountain. So here in the valley side, it is silty and loamy, okay, and fertile. Clear? So in the valley side it is silty, loamy and fertile. That means silty, that means fine grains. ठीक है? So it is silty, loamy and fertile in the valley side, and whereas in the upper land it is coarse grained. Coarse grained and thin layer. So very thin layer we found in the upper land of the mountain regions. Here we found coarse grained soil. ठीक है, देखिए अब ये वैली साइड में क्या होता है, सिल्टी होती है, फाइन ग्रेन्स होती है एंड फर्टाइल होती है. ठीक है, अपर लैंड है, कोरस ग्रेन्ड है और थिन लेयर आपको मिलेगी वहाँ पे. अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब माउंटेन रीजन से वाटर के साथ, वाटर इज़ ए ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर फॉर द सोइल, वाटर के साथ जैसे ही वाटर उसको कैरी करके विद द रिवर, स्ट्रीम्स और चैनल्स वो नीचे वैली साइड में उसको कैरी करता है, तो उस कंडीशन में होता क्या, फ्रिक्शन के साथ उसके ग्रेन जो होते हैं वो फाइन होते हुए चले जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सोइल मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी फाइन ग्रेन्ड सोइल. ठीक है, और यहाँ पर जो सोइल मिलेगी वो मिलेगी आपको कोरस ग्रेन्ड सोइल. और यहाँ पर जो सोइल, जो ग्रेन्स होते हैं उनका वेट भी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो वो यहीं पे डंप कर देता है उनको, और जो फाइन ग्रेन सोइल होती है उसको वो आगे तक कैरी करके ले जाता है. कौन? वाटर. ठीक है, तो उस कंडीशन में जो वैली साइड है वहाँ पे आपको फाइन ग्रेन सोइल मिलेगी, सिल्टी नेचर में, लोमी, एंड ऑन द टॉप ऑफ द mountain we found coarse grained soil. Then the snow bounded area experience denudation. Snow bounded area experience denudation, and this soil here we found infertile soil and acidic in nature, which is acidic in nature. Okay, in the snow bounded area of the mountain we found that area feel the denudation. Denudation हम डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में. denudation is the process in denudation, it means strip off. ठीक है, किसी भी सोइल का जो अपर पार्ट है उसको स्ट्रिप ऑफ कर देना, रिमूव कर देना, और यू कैन से एक्सपोज द सोइल. ओके, सोइल को एक्सपोज कर देना. ठीक है, सो इन दिस डेन्यूडेशन प्रोसेस
like we have erosion, mass weathering, mass movement. सो ये कुछ प्रोसेस होती हैं सॉइल में, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. सो इन डेन्यूडेशन इज द अम्ब्रेला टर्म. एक्चुअली डेन्यूडेशन क्या है, दिस इज द अम्ब्रेला टर्म. इन दिस वी हैव 4 to 5 प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल इरोजन and mass movement, weathering and transportation. So about the denudation we will discuss in detail in the another chapter. Okay, so the snow bounded area of the mountain region experience the denudation process. Okay, there we found the infertile soil. Generally it is acidic in nature. So friends, this is the description about the mountain soil or forest soil. So आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, यहाँ पे सोइल टाइप जो है क्लासिफिकेशन खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सोइल डिग्रेडेशन. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोइल डिग्रेडेशन. सो दिस इज सोइल डिग्रेडेशन. सोइल डिग्रेडेशन, द वर्ड डिग्रेडेशन दैट मीन्स डिट्रोइटेशन. ओके, डिट्रोइट करना किसी भी सोइल की क्वालिटी को या डिक्रीज करना उसको, ठीक है. सो डिग्रेडेशन, सोइल डिग्रेडेशन इज द डिट्रोइटेशन और डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द सोइल. ओके, ऑफ द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द सोइल. नेचुरल क्वालिटी ऑफ सोइल. क्लियर? Deterioration or the decrease in the quality of the soil is known as the soil degradation. That means soil degrade हो रही है, उसकी नेचुरल क्वालिटी डिक्रीज होती हुई चली जा रही है, नेचुरल फर्टिलिटी डिक्रीज होती हुई चली जा रही है. दिस इज नोन एज द सोइल डिग्रेडेशन. एंड फॉर द सोइल डिग्रेडेशन वी हैव 2 type of the factor. First one is the natural factor, naturally degraded soil, and second is the human being are responsible, also responsible to degrade the soil quality, which is more threatening than compared to the natural degradation. Just because natural degradation always have a balance between natural degradation and the formation of the soil, but ह्यूमन बीइंग एग्जागवेट और ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है इंटेंसिटी ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल. दैट विल बी डेंजरस फॉर द आवर एग्रीकल्चर. ओके, so first one we have natural factors, for example wind, water, glacier, volcanoes, earthquake etc. डिटेल में आपको बाद में डिस्कस करेंगे कभी. विंड जैसे रिमूव कर देती है ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल. वाटर क्या करता है, वाटर जो है उसकी जो टॉप लेयर है सोइल को उसको रिमूव कर देता है, ट्रांसपोर्ट करता है. इसी तरीके से ग्लेशियर है. वोल्केनोज क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो स्प्रेड कर देता है, कार्बन वगैरह, तो उससे प्रॉब्लम होती है. अर्थक्वेक से भी क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है. सो दीज आर द फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल डिग्रेडेशन. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. फर्स्ट वन, सेकेंड इज द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिग्रेड द सोइल जस्ट बिकॉज इंटेंसिव यूजिंग ऑफ द फर्टिलाइजर, ओके, इन द एग्रो फील्ड्स दैट फर्दर डिक्रीज द. पहले तो उसका कुछ लिमिटेड टाइम तक तो उसका जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज होगा, बट विद लिमिटेड आफ्टर ए थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, उससे क्या होगा, नेचुरल फर्टिलिटी डिक्रीज होती चल जाएगी. सो इंटेंसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, ओवर इरीगेशन दैट लीड्स टू द, मैंने आपको बताया था, ओवर इरीगेशन लीड्स टू द सैलिनिटी ऑफ द सोइल. ठीक है, सैलिनिटी है सोइल की, उसको इंक्रीज कर देता है. देन माइनिंग ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल डिग्रेडेशन. माइनिंग की वजह से भी जो सोइल का जो है पोल्यूशन होता है, और सोइल पोल्यूशन की वजह से सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है. सो नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स वी हैव. Then we have soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सरफेस. ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोइल कवर. सोइल कवर जो है उसका डिस्ट्रक्शन ही सोइल इरोजन है. ठीक है, इज डिस्क्राइब एज द सोइल इरोजन. इन दिस वी ऑल्सो हैव 2 फैक्टर्स. पहले आप देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ द सोइल एंड द सोइल इरोजन, they are simultaneous process running simultaneously, just because formation होता रहता है, formation of the soil, और उसके साथ उसका erosion भी होता रहता है. तो so formation of the soil and the destruction of the soil, ये दोनों प्रोसेस जो है साथ साथ में चलती रहती है. ऐसा नहीं है कि कोई सोइल एक बार पहले बनी उसके बाद में उसका डिस्ट्रक्शन होगा, नहीं, सोइल बन भी रही है और सोइल डिस्ट्रॉय भी हो रही है. सो फॉर्मेशन एंड द इरोजन, दे आर साइमल्टेनियसली रनिंग प्रोसेस. ठीक है, सो देयर इज ए बैलेंस.
दिस इज नेचुरल बैलेंस, ओके, दिस इज नेचुरल बैलेंस। इट मीन्स नेचर जो है सॉइल के फॉर्मेशन और उसके डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट देर इज ए बैलेंस। बट ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसको एडिशनल प्रोसेस से एग्जैक्टिवेट कर देता है, उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। सो देन इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल विंड आर रेस्पॉन्सिबल for the erosion in the arid and semi-arid area for in large extent, just because it transport the top layer of the soil, top fertile layer of the soil, it remove the top layer of the soil for in the arid and the semi-arid area. So wind is responsible factor for the arid and semi-arid area, and water is the another factor which is responsible for the responsible for soil erosion in the mountain area generally, but in plain area also. Water से क्या होगा, शीट इरोजन एंड गली इरोजन होगा। शीट इरोजन दैट मीन्स कभी कभी शॉवर्स होती हैं, और शॉवर्स के केस में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होगी और उस केस में जो टॉप लेयर है सोइल की वो एक साथ रिमूव होगी, इसका पता भी नहीं चलता है, ठीक है। दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, इन दिस केस हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं इरोजन को, ठीक है, और टॉप लेयर जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। बट गली इरोजन जो है, गली इरोजन स्ट्रीम्स क्या करती हैं, डीप गलीज क्रिएट करती हैं, ठीक है। रिवर क्या करती हैं, डीप गलीज क्रिएट करती हैं, रेवाइंस बनते हैं। सो डीप गलीज एंड रेवाइंस ये क्या करते हैं, सोइल को इरोड करते हैं, ठीक है, और ग्लेशियर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इरोजन, ठीक है। देन फ्यू ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो देयर। ह्यूमन फैक्टर्स में डिफोरेस्टेशन है, ओवर इरीगेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। तो इस तरीके से कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल डिग्रेडेशन, सोइल इरोजन, ओके। Then we have the topic that is soil conservation. So why soil conservation is important? Soil क्यों conservation क्यों important है? Let's discuss the topic. So this is the last topic of this chapter, soil. That is soil conservation. Soil conservation क्यों important है? Why it is important to conserve the soil for us? Just because soil is a precious resource. Soil is a precious resource and living resource. Soil एक precious resource है and living resource है। precious just because it is important फॉर द वेजिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए सॉइल एक प्रीशियस रिसोर्स है, इसको कंजर्वेशन जरूरी है। सो वी हैव थ्री टर्म्स इन दिस सॉइल कंजर्वेशन। फर्स्ट वन इज द मेंटेन, सेकंड प्रिवेंट एंड थर्ड वन इज द इम्प्रूव, ओके। सो मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। व्हाट मेंटेन? फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, देन प्रिवेंट द इरोजन, prevent the soil erosion and improve the quality of degraded soil. Improve the quality of degraded soil, okay. So this is known as the soil conservation, okay. Conserve in the sense maintain the fertility of the soil, existing fertility of the soil, prevent the soil erosion, and third one is improve the quality of the degraded soil is known as the soil erosion. Why conservation is important? Just because it is the precious resource, it is important for the plant life. Then what are the methods for the soil conservation that we are using today or we have to use? First one is the terrace farming. So in the mountain area we have to use the terrace farming just because the speed of the water, mountain area in the mountain area water की जो speed है वो ज़्यादा होगी as compared to the plain, just because steep slope are there. So to break the speed of the water which is responsible for the soil erosion in the mountain area, we have to use the terrace farming. terraces क्या करेंगे, उसकी स्पीड को ब्रेक डाउन कर देंगे। देन टू स्टॉप, ठीक है, वी शुड स्टॉप द ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, ठीक है, जो भी ओवर ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है उन दैट एरिया हम क्या करेंगे, वेजिटेशन कवर जो है उससे वो रिमूव हो जाएगा, पहली बात। दूसरा इससे क्या होगा, जो जितने भी एनिमल्स वगैरह जिससे हम ओवर ग्रेज कर रहे हैं, ठीक है, बल्क में हम ग्रेजिंग एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है,
तो जो उनसे क्या करते हैं वो ब्रेक करते हैं सोइल, टॉप लेयर ऑफ द सोइल। देन जो विंड है उसके लिए ईजी हो जाता है टू कैरी द फाइन ग्रेन्स ऑफ द सोइल, ठीक है। सो ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए। इसको मैनेज्ड वे के अंदर पार्सल्स बना के या जो अलग अलग शेल्टर जो बेल्ट्स बना के उनको क्या करना चाहिए हमें, और जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है उसको कंडक्ट करना चाहिए इन ए मैनेज्ड वे, ओके। देन नेक्स्ट इज ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो ओवर ग्रेजिंग जो है उसको खत्म करना है, इसको इम्प्रूव करना है। देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको भी हमें क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, इसको इट शुड बी अबॉलिश्ड। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बंद करना चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीड्स टू द डिफोरेस्टेशन विच फर्दर लीड्स टू द सोइल इरोजन, ओके, और द डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द सोइल। Then contour farming we should utilize in the sloppy area। contour farming में क्या होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई जेंटल स्लोप रीजन है, ठीक है, दिस इज ए जेंटल स्लोप रीजन। इस रीजन में क्या होगा, स्लॉप की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हमें जो कल्टीवेशन करना है तो वो कुछ इस तरह करना चाहिए ऑन द 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो होगा 90 डिग्री पे होगा, किसके साथ, स्लोप के साथ, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द कॉन्टूर फार्मिंग, क्लियर। स्लोप और कल्टीवेशन जो है उन दोनों में 90 डिग्री होना चाहिए, दैट इज नोन एज द कॉन्टूर फार्मिंग। देन वी हैव टू यूज द मिक्स्ड फार्मिंग, दिस इज ऑल्सो सोइल कंजर्वेशन का एक मेथड है, जस्ट बिकॉज एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, कल्टीवेशन विद एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस कर रहे हो और एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो कंपोस्ट वगैरह जो बनेगी उससे सोइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। देन अफोरेस्टेशन, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स का फॉर्मेशन करना चाहिए। शेल्टर बेल्ट से क्या होगा, इट ब्रेक द विंड स्पीड, ठीक है, विंड की स्पीड को ब्रेक कर देता है, ग्रीन बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, ये सब। तो उससे क्या होगा, जो ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, वो एज ए बैरियर वर्क करते हैं बिटवीन द विंड्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सोइल कंजर्वेशन को करेंगे और सोइल का इरोजन है उसको प्रिवेंट करेंगे। देन स्टेबलाइज द ड्यून्स इन द डेजर्ट एरिया, उसमें ग्रीनरी वगैरह डेवलप करके ड्यून्स को स्टेबलाइज करना, दैट मीन्स स्टॉपिंग द डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है डे बाय डे, डेजर्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हमें रोकना है बाय स्टेबलाइजिंग द ड्यून्स, ओके, इन द एरिड रीजन एंड सेमी एरिड रीजन। फॉर दिस राजस्थान के अंदर एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है, कजरी, CAZRI, कजरी, ओके। कजरी क्या है, एरिड जोन, सेंटर फॉर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी, ठीक है, सेंटर फॉर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी। ये कहाँ पे है, जोधपुर, जोधपुर राजस्थान। क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्या इंस्टीट्यूट है, कजरी कहाँ पे है, सेंटर फॉर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन जोधपुर राजस्थान। तो ये क्या कर रहा है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए अलग अलग मेथड जो है वो राजस्थान में अप्लाई कर रहा है। मेंटेन, प्रिवेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, दिस इज नोन एज द सॉइल कंजर्वेशन। आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स के साथ आपको इस टॉपिक पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, ठीक है। आप सब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसको भी इस थ्रू आउट द चैप्टर कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ इस चैप्टर के साथ हमारी जो बुक है इंडिया, उसके जो 4 चैप्टर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो we will start another book that is physical India, physical जो वाली जो अपनी बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।